Hello guys, welcome back to my channel Study Time. I hope that you are safe and sound, and our family members too. So today we are doing algebra extra questions class 7. The topic is linear equation with one variable. Guys, I know that this topic has not been taught to you, but then also let's do some questions that to show to see that how you know about linear equation with one variable. This topic has been taught to you last year also, but now it was last year it was somehow easy, but now it will be much difficult than the previous one. So let's start. Let's come to the first question. And the first question starts now. I will show you the solution later on. Yes. Question 1. A number when added to its half gives 72. Find the number. एक नंबर है, अगर वो अपने आधे से ऐड होगा तो वो 72 देगा, और अपन को उसका नंबर वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द नंबर इफ इट इज एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 72. तो मेरी हैंडराइटिंग है, कमेंट सेक्शन में बताना कैसी है. मैंने खुद की हैंडराइटिंग से ही नंबर लिखे हैं, सॉल्यूशन लिखे हैं. कि मैंने स्कैन किया है तो इसमें थोड़ी कटी कटी आ रही होगी, फॉरगेट इट. नाउ देयर आर टू मेथड्स ऑफ इट. Yeah, let's see the first method. First point. First frame an equation as नीचे देखिए इक्वेशन बनी है x अपॉन 2 प्लस x इज इक्वल टू 72. या ये भी लिख सकते हैं x प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 72. मैं मेरी तरफ से by my side this equation is the best, but you are thinking that this equation is also correct, but as algebra. So this equation, the question is saying that a number when added to its half, and this equation is showing that an half is added to its number. This is also correct, this is also correct, but this can only in multiplication, and this can be only done in multiplication and subtraction. No, multiplication and addition. Don't try or do it in subtraction or division. Okay, as you can get wrong. So this equation we have found. Then solve this equation like that only, like we solve fractions. हमको इस इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं. अब ये मान लीजिए कि ये फ्रैक्शन ही है एक तरह से. अब जैसे ये x अधूरा है ना, तो जनरली हम x के नीचे अपॉन 1 नहीं लिखते, पर मेरे ओपिनियन से मैं तो 1 लिखता हूँ. तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो होगा x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 2. इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2. then multiply by x is equals to 2x plus x, so it will be 3x upon 2. Now we will see 3x upon 2 is equals to 72, so we will divide it 72 divided by 3x upon 2. So 3x 3 24 multiplied by 3 is 72. So when we divide 72 by 3 we get 24, and then we multiply 24 by 2 will 40. Now verify it. 48 plus half of 48 is equals to 24. So 48 plus 24 is equals to 72. So answer our answer is correct. Now one more method. मेथड 2 आप ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल वे से. 1/3 और 72 तो 24 आ गया. 24 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो 48. पर मैं अब वे ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो वे थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है कि आप सिंपल ही कर दो. मेरी तरफ से मानो बाई चांस आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, तो जैसे मैंने किया है ना मेथड 1 मेथड 2, भले ही आपका आंसर रॉन्ग हो जाए, पर जिस तरीके से आपने किया है ना, मानो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टीचर आपको आधा या 1 मार्क्स तो ऑब्वियसली देगी, क्योंकि आपने फुल मेथड से किया है. अगर आप करोगे, और आप सिंपल मेथड से कर सकते हो,
मतलब इतना ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, पर मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे को राइट लिखना अच्छा लगता है. So I will suggest you the above method one. Okay. Now comes the next question. Yes. A number when added to its two-thirds is equals to 55. Find the number. एक नंबर है, अगर वो अपने 2/2/3 से ऐड होगा तो उसका आंसर होगा 55. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका 6, अगर 6 का 2/3 क्या होगा 4. अगर 6 + 4 है तो मानो इधर होता a number when added to its 2/3 is equals to 10. तो अपन क्या करते, इसका जो फाइंड द नंबर है तो उसमें अपन लिखते 6, क्योंकि 2/3 of 6, 3 2 6, 2 2 4, लाइक दैट. ठीक है. अब देखिए पहले इसमें क्या करें, इसमें भी मैंने पूरा मेथड लिखा है, डोंट वरी. First frame an equation as this: x plus 2x upon 3 is equals to 55. इसके आगे 1 लगाना है तो आप लगा सकते हो, दिखेगा नहीं बाकी वो. Then solve it. अगर अपन को फ्रैक्शन से ही सॉल्व करना है तो वापस वो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है. तो इसका एलसीएम आया 3, तो 3x plus 2x is equals to 5x. हम गाइस x इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि you know a variable and a constant can't be added and can't be subtracted. Only it can be divided and it can be multiplied to it. So 5x upon 3, इसमें भी अपन ऐसे ही करेंगे. We will do like that. We will do that only that we have done in the previous question. 5x upon 3 is equals to 55. 55 divided by 5x upon 3. तो 55 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो गया, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं अपन इसको. तो 3/5 11 33. अब वेरिफिकेशन देख लेते हैं. 33 plus 2/3 of it is equals to 22. 33 plus 22 is equals to 55. So I hope that you have understood. I am showing you again this solution. बहुत easy question है, बस दिमाग से सोचो. अगर if you don't use your brain then you can't do algebra. Algebra is totally of using the brain. आप जितना दिमाग यूज करोगे इसमें उतना ही आपको समझ आएगा. और मेन बात बताऊं, ये जो वेरिएबल्स होते हैं बहुत सारे होते हैं A to Z. आप ये मत समझो कोई सा भी वेरिएबल, सबसे जो बेस्ट वेरिएबल होता है, जो ज्यादातर मतलब 99.9% जो यूज होता है ना वेरिएबल, वो है x जो यूज होता है. तो मेरी ओपिनियन से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे भी जो टीचर्स हैं वो भी x वेरिएबल यूज करते हैं. तो आपके भी करते होंगे, कमेंट सेक्शन में बता देना. चलिए let's move further. Now the typical question begins. थोड़ा hard है guys. It is a little bit tough. A father is 30 years older than his son. In 12 years, the man will be 3 times as old as his son. Find their present ages. अब देखो, एक जो बाप है, एक फादर है, वो अपने सन से 30 साल बड़ा है. 12 साल में वो जो मैन है, जो उसके जो फादर है, वो उससे 3 टाइम्स ओल्ड हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. और उनकी जो अभी की जो वर्तमान काल, जिसको अपन प्रेजेंट कहते हैं, उन तब की एजेस फाइंड करनी है कि वर्तमान काल में प्रेजेंट में उनकी एज क्या होगी. लिख रहा है ना, फाइंड द प्रेजेंट एजेस. ओके, हम देखिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. लेट सन्स एज बी एक्स. सन की एज एक्स रख लेते हैं. लेट फादर्स एज बी x plus 30. तो उसकी जो फादर की एज थी 12 साल पहले, 30 साल बड़े थे उससे, तो x plus 30. सन्स एज आफ्टर 12 years. ऑब्वियसली अगर आप 6 साल के हो तो 12 साल में आप 18 years के हो जाओगे. तो उसकी एज अपन को पता नहीं, अपन ने एक वेरिएबल ले रखा है
So we have done x plus 12. ठीक है. Then father's age after 12 years. ठीक है. अब फादर की उसके जो फादर है उनकी एज अपन 3 टाइम्स है, तो अपन ये नहीं ले लेंगे 3x plus 12. 3 अगर अपन x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 12. तो अपन ऐसे ले लेंगे 3 ब्रैकेट x plus 12. 3 में आप सोच रहे हो कि कोई साइन नहीं है, तो आपको पहले क्लासेस में सिखाया होगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है. These basic things I think that you know, and if you don't know, now understand by this video. So now according to the rule of formation of equation, according to the rule इसमें कॉमा आएगा गाइस, कॉमा इसमें, वेट, I have forgotten, comma. Now according to the rule, formation of equation will be like this. Now see its formation. X plus 12 is equals to 3 bracket x plus 12. तो ये हो जाएगा x plus 12. अब 3 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 12 से करेंगे 36. अब ये आपको बता दिया होगा, लाइक हमें तो बता दिया था आपको 7th क्लास में. अगर जो एनसीईआरटी स्टूडेंट्स हैं, जैसे जिनके स्कूल में जो टीचर्स बुक का ही कराती है उनके हिस्सा लाया है, जिनके टीचर्स कुछ फर्दर कराते हैं, लाइक माय टीचर्स आर द बेस्ट, सो वो ऐसे कराते हैं, तो मेरे को पता है. तो अपन करेंगे क्या, यू नो दैट सब्ट्रैक्ट में और in subtract and addition we can do by variable and variable and constant and constant. We can't do that in at first place it is constant and at the second place it is variable. So we will do x, we will forward it at the place of 36, and it is LHS and it is RHS equation. मैंने ज्यादा नहीं लिखा क्योंकि आपको पता होगा it is. So ये जो x है, जो प्लस का है, आपको पता है जो पहला वेरिएबल होता है वो हमेशा प्लस का होता है. तो जो x है ये चले जाएगा 3x की प्लेस पर. अब ये जो x है ना, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में चले जाएगा. जैसे जो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये प्लस x है, तो अगर ये प्लस x 36 की प्लेस पे चला गया तो होता क्या है, इक्वेशन का ये रूल होता है कि जब भी अपन नंबर फॉरवर्ड करते हैं तो जो एडिशन है वो सब्ट्रैक्ट बदल जाएगा, सब्ट्रैक्ट है जो एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन है फ्रैक्शन हो जाएगा. ऐसे एक रूल होता है. ओके, तो x है तो 3x, जो प्लस का साइन है अपन ऐसे कर देंगे 3x माइनस x. इसका आंसर आ जाएगा 2. अब ये जो 36 है प्लस 36, अगर अपन इसको ले लेंगे माइनस में, तो अब देखिए yes, अब ये जो प्लस 36 है ये बन जाएगा माइनस में, माइनस 36. अब यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है कि मैंने 36 माइनस 12 करा है. तो एज फॉर माई ओपिनियन दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और आप अगर ऐसे कर सकते हैं, अगर ये माइनस 36 प्लस 12, वेट 36 प्लस 12 है ना, आप क्या कर सकते हैं, जो माइनस 36 तो नहीं होगा इसके अंदर, आई हैव ओनली डन इट रॉन्ग. सही किया है मैंने सब. यस, सो अब होगा क्या, 36 माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x माइनस x. 36 माइनस 12 24 इज इक्वल टू 2x. अपन डिवाइड करेंगे, आंसर इज 12. अब देखिए मैंने कुछ लिखा है. So after 12 years the son will be of 12 and father 12 multiplied by 3 36 will be of 36. सर मेरे हिसाब से ही आपको समझ आ गया होगा. Let's move further. गाइस, अगर आप इन तरह के क्वेश्चंस को करते रहेंगे अपने फादर से, मदर से, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मेरे ओपिनियन से आप एक एक्स्ट्रा बुक मंगवाइए मैथ्स की. इट विल हेल्प यू. नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन.
5 years ago, a man was 7 times as old as his son. 5 years hence, the father will be 3 times as old as his son. Wait, as his son. Find their present ages. अब देखो इसका मतलब दिखाता हूँ तुमको. 5 साल पहले एक आदमी था, वो अपने बेटे से 7, उसकी जो एज है उससे उसका 7 गुना था. 5 years hence, 5 साल बाद उसके जो पापा हैं वो 3 times old है. मतलब जो 5 साल बाद उसकी एज होगी ना, उसकी एज का जो 3 times होगा वो अगर अपन उसमें प्लस कर देंगे तो 5 साल बाद उसके पिताजी, जो भी आप बोल सकते हैं, उनकी एज आ जाएगी. ठीक है, तो अब इसका भी देखते हैं हम कैसे करेंगे. चलिए, let the age of son 5 years back is equals to x minus 5. Let be the age of father 5 years back 7x minus 5. इक्वेशन फाउंड हो जाएगी x minus 5 is equals to 7 ब्रैकेट x minus 5. तो ये हो जाएगा x minus 5 is equals to 7x minus 35. अगर अपन सॉल्व करेंगे तो जो प्लस में वेरिएबल था, सॉरी ये जो वेट मिस्टेक कर दी थी, तो ये इसका हो जाएगा 7x minus x is equals to 35 minus 5. तो 6x is equals to 30. तो 5 इसका आंसर आ गया. ठीक है, तो एज ऑफ सन एंड फादर 5 years बैक 5 years एंड फादर की हो जाएगी 35 years. आफ्टर 5 years सन की हो जाएगी 10, फादर की हो जाएगी 40. Hence son's age is 10 and father's will be, what I have written, wait, will be 3 times his son's age. 10 into 3 plus 10, 30 plus 10 is equals to 40. It is so because if we do 10 multiplied by 3, it will be 30. But 5 years back, father's age was 35. That is why we have done 10 into 30 plus 10 is equals to 40. और क्वेश्चन में भी ये लिखा था.